As thousands starved in Thar Parker during the first week of March, the electronic media's early headline focused on Pakistan cricket team's progress in Asia Cup. News of Thar Parker and starving Pakistanis appeared much later in news coverage. Okay, regarding Thar, balki jo Thar for mine tha, it was one of the scariest days for Pakistan, and equal number of students and people died जितने APS में हुए थे, लेकिन क्योंकि it wasn't the priority और तो मीडिया ने उसको अच्छे तरीके से बिल्कुल भी कवर नहीं किया. The most amazing stuff is the one who keeps the resources of the media. मीडिया उन्हीं को इन्वेस्ट कर रहा था. बड़ी हैरानी की बात मेरे लिए ये होती थी कि पता चलता था कि 3 बच्चे आज थर से मर गए और बीच में एक नेस्ले का डांसिंग ऐड आ जाता था, उसके बाद एक मोबाइल का डांसिंग सा ऐड आ जाता था. इवन वी डिड नॉट वांट टू चेंज द प्रायोरिटीज ऑफ द मार्केटिंग इंडस्ट्री जिससे हम रिसोर्सेज लेते हैं, जिसके साथ हम चेंज कर रहे थे. एंड सर्टेनली इसके बाद खान साहब का धरना भी चल रहा था. बीइंग माई सेल्फ अ लॉट प्रो पीटीआई पर्सन, Thar wasn't left as a top priority of the media industry. Maybe it was less lucrative. Maybe it wasn't giving them enough of money into the banks. So let's coming back to the business. Yes, certainly Pakistan में media ethics के हवाले से Thar is a beautiful case study जहाँ पे आप देख सकते हैं कि if anything is out of fashion, even if death is out of fashion, no one's gonna follow that. दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब है गम रोजगार के. No one cares. If the only care is if the particular business or if a particular thing is giving them enough of the business, they work for you, they will cover you, they will give you proper attention. हैरानी की बात होती है कि तेंदुलकर की रिटायरमेंट्स के ऊपर 3-3 घंटे की कवरेजेस होती हैं और शायद थर के बारे में अगर आप अभी यूनिवर्सिटी में पूछें तो लोगों को ये भी ना पता वो प्रिसाइजली कहाँ फॉल करता है. शायद हमें ये भी स्टैटिस्टिक्स नहीं याद कि वहाँ पे क्या कवर किया. बड़ा एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि नवाज शरीफ साहब की घड़ी के ऊपर मीडिया कैन कवर डेज एंड डेज. खान साहब की जूती के ऊपर मैंने प्रोफाइल्स बनी देखी हैं, 8-8 मिनट की रिपोर्ट चढ़ी है. लेकिन जब थर में लोगों को बोरी में मट्टी चली गई थी गंदम की जगह, इट वॉज less than a 2-minute report and people were dying. Maybe those people were weak, maybe those people were big darker in color and they were not woke kind of people, were fashionable nahi the. So media wasn't motivated enough to go and capture them और उनकी आवाज़ को उठा करना है और उनकी आवाज़ को उठा करना है. इसकी एक और केस स्टडी अगर मैं आपको दूं थर के हवाले से रिलेट कर लें कि वो जस्टिन बीबर के गाने वाले जो 2 लड़कियां, फॉर गॉड सेक यार, देयर आर ट्रिलियंस ऑफ पीपल हु कैन सिंग बेटर देन देम. किस प्रायोरिटी से उनको हर मॉर्निंग शो पर कवर किया गया, हर चीज़ पर कवर किया. थर की एक फैमिली नहीं लाई गई, थर का एक बच्चा नहीं लाया गया, थर का एक इंटेलेक्चुअल नहीं लाया गया, थर का एक पोएट नहीं लाया गया जिसने बीमारी में आकर भी वहाँ पे स्ट्रगल जारी रखा. इन जस्टिन बीबर वाली गर्ल्स आ गई, उनका भी कवर किया गया. मिसबाह उल हक के ऊपर 7-7 मिनट डिबेट हो जाती है एंड आई रियली वांट कि वो डिबेट तो स्पोर्ट्स सेक्शन में हो, लेकिन हमारा पीक आवर्स, हमारा पीक टाइम stands for the fashion, stands for what is in the practice, and there is a difficult term, zeitgeist. Media follows the zeitgeist, media follows the contemporary route और उसके खिलाफ जो भी हो रहा है, खा गरीबों की मौत हो या कोई और चीज़ हो, अगर वो उनके लिए ल्यूक्रेटिव नहीं था, so it wasn't their ethical consideration. And coming back to the ethics definition, Socrates said, and I guess maybe Plato, उसने कहा था कि I'm discussing no small matter but how we should live. And looking at our media, I'm very sorry to say it's not the proper case. I think they're far away from ethics right now. They're far away from ethics, and perhaps an educated man is likely to live better, but in our media case, इतने intellectuals वहाँ बैठे होते हैं and things, scenarios, the way they're captured, the way they're exploited, the way they're ruined is a very critical. Thar being the perfect case study कि किसी ने उसको प्रॉपरली कवर नहीं किया, किसी ने उसको पाकिस्तान की टॉप प्रायोरिटी नहीं बनाया, किसी ने उसको पाकिस्तान का असेंबली क्वेश्चन नहीं बनने दिया, किसी ने उसको प्रोविंशियल असेंबली का क्वेश्चन नहीं बनने दिया. हमारी असेंबली में वज़ीर आला सिंध की कुर्सी की लेंथ डिस्कस हुई थी, मैंने वो रिपोर्ट देखी हुई है, लेकिन थर में उन बच्चों को मेल न्यूट्रिशन है, वो बीमार हैं, हर साल बाद क्यों आ जाता है, किसी ने इनके ऊपर इंटेलेक्चुअल रिपोर्ट, रिसर्च बेस्ड रिपोर्ट मीडिया ने कंडक्ट करने की कोशिश नहीं की.